Hello friends. Today we are going to be discussing about Jean Baudrillard, who is a French semiologist and philosopher. We are going to know about him because he is a very important literary figure in postmodern era from which a couple of questions have been asked in previous years new UGC net paper. So let's begin. So Jean Baudrillard was a French philosopher and semiologist. He is very renowned figure in the field of postmodern literary thinking and literary analysis. Postmodern literary thinking के क्षेत्र में he has given a couple of concepts which are known to be very new and different from the traditional ones, and that is why we are here talking about him. He works with new patterns and trends prevailing in postmodern society that constructs its culture. He talks about the role of consumer media, consumerism, advertisements, films, TVs, that how they collectively shape our perception of the world by presenting us with pre-interpreted images and narratives. What does it mean? कि जॉन बॉड्रिलार्ड ने कई सारे हमें नए ट्रेंडिंग एलिमेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया विच आर प्रिवेलिंग इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, जो पहले के हमारे पोस्ट मॉडर्न एरा से पहले इतने ज़्यादा हमारे सोसाइटी में नहीं थे, जैसे कि टीवी, जैसे कि हमारा कंज्यूमरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो, और हमारे एड्स, हमारे सोशल मीडिया, ये सारी ही चीज़ें कलेक्टिवली शेप करती हैं सोसाइटी के लिए हमारा जो परसेप्शन है, हमारी जो थिंकिंग है, इन सबको हमारे कल्चर को शेप करती हैं इस मॉडर्न एरा में, इस पोस्ट मॉडर्न एरा में. तो इन सभी चीज़ों पर जॉन बॉड्रिलार्ड के अकॉर्डिंग बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें हमारे आज के कल्चर और आर्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं. Now we are going to discuss some of his works, because in these works he has given his various literary concepts, such as System of Objects, which came out in 1968, The Mirror of Production in 1973, Simulacra and Simulation of 1981, and it is the most important work by Baudrillard. America in 1986, the Gulf War did not take place 1991, and it's also the second most important work by him, because a question has been asked in your UGC net exam from this work, the Gulf War did not take place, and this work has given the concept of hyper reality, which has also been talked about in the previous work called Simulacra and Simulation. So these two are the most important works, Simulacra and Simulation, and the Gulf War did not take place. Now, first is the concept of simulacra. We are going to talk about all these important theories. His work Simulacra and Simulation discusses these topics majorly: the concept of simulacra, the concept of simulation, then 4 stages of simulacra and simulation, and then finally hyper reality, which is also the discussed topic of the Gulf War did not take place in 1991. So now we are going to start off with simulacra. What is simulacra? Simulacra is the representation of reality. It is not reality itself, it is its representation. It is the imitation or copy of reality. Suppose there is this thing, there is something, suppose it's shoes, a pair of shoes we see. The reality is the shoes. We see a pair of shoes, and that is reality. But when we take a picture of those shoes and we show the picture of the shoes, the picture is the copy of reality.
It's not the reality itself, but it's the copy or imitation or representation of the shoes, representation of reality. So this is known as simulacra. But it doesn't end here only. Like we take a picture of the shoes and that is the representation of reality, और ये यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है. There is a process of an object becoming simulacra through a period of time or through a certain process. और जब वो ऑब्जेक्ट एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू उसका प्रेजेंटेशन सिमुलैक्रा बनता है, तो उस रियल ऑब्जेक्ट और उसके प्रेजेंटेशन के बीच कोई भी लिंक नहीं बचता. कैसे, हम आगे समझेंगे. सिमुलैक्रा इज नोन एज द कॉपी ऑफ कॉपी. जस्ट बेयर विथ मी और आपको आगे समझ में आएगा क्या है ये. कॉपी ऑफ कॉपी है. ये किसी रियल चीज़ की कॉपी नहीं बचती. जैसे हमने रियल ऑब्जेक्ट देखा शूज़ और उसकी फ़ोटो यानी उसकी कॉपी क्या हो गई, हमने कहा था सिमुलैक्रा. पर सिमुलैक्रा अभी जस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होता. रियल फ़ोटो की हमने जब कॉपी ली और फिर बाद में हम इसकी भी एक कॉपी, इस कॉपी की एक कॉपी प्राप्त करेंगे, तो वो कॉपी होगी बिल्कुल रियल, ऑब्जेक्टिव, करेक्ट या कंप्लीट सिमुलैक्रा. सिमुलैक्रा बनना एक ऑब्जेक्ट से एक सिमुलैक्रा तक का सफ़र एक पूरी प्रोसेस है जिसे हम 4 स्टेजेस के थ्रू समझते हैं. तो हम इसे धीरे धीरे समझेंगे. अभी के लिए आप इतना जानिए कि सिमुलैक्रा इज़ अ कॉपी और इमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या साइन, कुछ भी कहिए, दैट इवेंचुअली बिकम्स कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी. इट बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी. ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. और ये क्या है कि ये जो डिटैचमेंट होता है हमारा रियलिटी से किसी भी चीज़ का, वो क्या होता है इवेंचुअली. मैंने शब्द यूज़ किया है इवेंचुअली, मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं हो जाता है. एक पीरियड के बाद, एक प्रोसेस के बाद आगे जा कर के ये जो है रियलिटी से दूर हो जाती है. जब ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन, तब वो सिमुलैक्रा बनता है. सो इट्स द इमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और साइन दैट इवेंचुअली बिकम्स कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी, एंड इन द एंड इट हैज़ नो लिंक और सिमिलैरिटी विद द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट दैट इट वाज अ कॉपी ऑफ. कैसे अब हम इस बात को समझ सकते हैं, कैसे हम सिमुलैक्रा को समझ सकते हैं. देखिए, सबसे बेसिक एग्जाम्पल अगर हम समझें कि जैसे हमने कोई सीनिक व्यू देखा, पहाड़ और इसमें पेड़ हैं, नदी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. एक सीनिक व्यू है. जब हम उस व्यू को अपनी आँखों से देख रहे हैं और उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये है रियलिटी. जब हम इस रियलिटी की हमने एक फ़ोटो ले ली और अब ये फ़ोटो, इस फ़ोटो में भी क्या दिख रहा है हमको, सीनिक व्यू दिख रहा है. वही सीनिक ब्यूटी दिख रही है, बिना किसी एडिटेड प्रोसेस के, बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी एडिशन के. जब हम उसकी बिल्कुल रियल बेसिक इमेज लेते हैं उसी सीनिक व्यू की, जिसमें वो इमेज बिल्कुल प्रेजेंट कर रही है ओरिजिनली उसी व्यू को, उसमें बिल्कुल भी कोई काट छाट, कोई भी एडिशन नहीं है, कुछ भी फ़िल्टर नहीं है, तो ये क्या है, इसकी फर्स्ट कॉपी है. फर्स्ट कॉपी, कॉपी 1. ठीक है. अब जब हम इस कॉपी 1 में, जस्ट बेयर विथ मी, जस्ट कीप अप विथ मी, और आपको आगे चल के ये समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि हमने एक सीनिक ब्यूटी देखी, एक सीनिक व्यू देखा, वो रियलिटी है. उसकी हमने बिल्कुल बेसिक अनफिल्टर्ड फ़ोटो ली, वो उसकी कॉपी 1 है. इस कॉपी 1 को, इस फर्स्ट कॉपी को जब हमने क्या किया, एडिट किया, इसमें फ़िल्टर अप्लाई किए, इसे और सुंदर बनाया, तो अब एक नया व्यू तैयार हुआ. ठीक है. जो ये हमारी कॉपी 1 थी, वो रिप्रेजेंट कर रही थी बिल्कुल ओरिजिनली हमारे सीनिक ब्यूटी को, जो सीनिक व्यू हमने देखा था. चाहे वो अच्छा दिख रहा हो, चाहे बुरा दिख रहा हो, जैसा भी दिख रहा था, वो वैसी ही उसे रिप्रेजेंट कर रही थी. अब जो इसकी फ़िल्टर्ड फ़ोटो है,
Now it is also representing the original scenic view, but there is a lot that has been changed. तो क्या है, ये किसकी कॉपी है? ये ओरिजिनल की कॉपी ना हो करके ये उस कॉपी की कॉपी है जिसमें बहुत सारे चेंज हो चुके हैं. So this edited photo is the copy of the copy 1, first copy. So it's a copy of copy, and it's also completely detached from the original view, which was not as beautiful or utopian as this edited photo is. So this is simulacra. When the ultimate material you get, when the ultimate representation that you get is completely detached, is completely different from the original object, from the original sign that you had experienced, that is called simulacra. कि वो चीज़ जो आपको अल्टीमेटली मिली है वो ऐसा दिखता तो है कि वो आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को, ओरिजिनल साइन को रिप्रेजेंट कर रही है, बट इट इज़ क्लियर दैट there is a fine line between the two. There is no link, there is no similarity, there is no connection between the original, between the reality and the final object, the final representation. So this is called simulacra. I hope you understood this term, this concept. अगर आपको ये concept समझ में आ गया है तो हम इसके आगे simulation पर बढ़ सकते हैं. अगर आपको अभी भी ये concept नहीं समझ में आया है तो आई सजेस्ट कि आप एक बार फिर से इस वीडियो को स्टार्टिंग से, जहाँ आई हैड स्टार्टेड सिम्युलैक्रा, वहाँ से देखिए तो आपको फिर ये थोड़ा सा समझ में आएगा और फिर आप आगे बढ़िए सिमुलेशन पर. अब सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन हमने सुना है, सिमुलेशन के बारे में कई बार एक्सपीरियंस भी किया है अपने रियल वर्ल्ड में, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपने कभी वीडियो गेम्स खेले हों, वीडियो गेम्स ऐसे वाले जिसमें बिल्कुल रियल वर्ल्ड सिचुएशन दिखाई जाती है. जैसे स्पोर्ट्स पर हम जो गेम खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट पर, जैसे कि रेसिंग पर, तो जब आप उन वीडियो गेम्स को खेलते हैं और आप, कुछ वीडियो गेम सेंटर होते हैं जहाँ पर आप जाइए और आपको ऐसे स्टीयरिंग दी जाएगी और स्टीयरिंग को आप ऐसे पकड़ करके और आप जब मूव करेंगे तो ऐसा लगेगा, सामने जो स्क्रीन है वहाँ पर जो गाड़ी चल रही है वो ऐसा लगेगा कि आप खुद चला रहे हैं. तो क्या हुआ यहाँ पर कि आप गाड़ी सच में रियल वर्ल्ड में नहीं चला रहे हैं, आपको सिर्फ एक सिमुलेशन दिया गया है. सिमुलेशन का मतलब भी एक तरीके का कॉपी, या आप कह सकते हैं, बहुत इसके लिए सही टर्म होगा फॉलो करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का हिंदी जिसे शायद कहते हैं अनुकरण करना, तो इसको सिमुलेशन कहते हैं. सो इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस. देखिए, सबसे मेन डिफरेंस जो सिमुलैक्रा और सिमुलेशन के बीच में है, जो अक्सर स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते, वो ये है कि सिमुलैक्रा की जब हम बात करते हैं, इट इज़ द इमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये किसी ऑब्जेक्ट का इमिटेशन है, ये किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी है, ये किसी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन जब हम सिमुलेशन की बात करते हैं तो ये किसी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन ना हो करके किसी प्रोसेस का, किसी एक्शन का, या किसी एनवायरनमेंट का, या फिर किसी सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन या इमिटेशन है. जो ये हमारा सिमुलैक्रा है, ये किसी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से इट इज़ स्टैटिक है, स्थिर है. जैसे फ़ोटो हमने खींच ली किसी चीज़ की तो वो स्थिर रहेगी, बट ये जो सिमुलेशन होता है वो किसी फ़ोटो की तरह स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक होता है. सिमुलैक्रा स्टैटिक है बट सिमुलेशन डायनामिक है. जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें सिचुएशंस आती जाती हैं, आप मूव करते हैं स्टीयरिंग को, तो उसी तरीके से जो स्क्रीन पर कार है वो भी मूव करती रहती है. तो ये स्टैटिक नहीं होकर के ये डायनामिक है. So it's a dynamic process in which fake environment is created to represent the real world. But this fake environment eventually gets detached from the real world scenario.
ये बात आपको समझनी है। दोनों ही सिमिलैक्रा हो या सिमुलेशन हो, जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है आपका वो क्या है, डिटैच्ड है आपकी रियल वर्ल्ड से। रियल वर्ल्ड सिचुएशन हो या रियल ऑब्जेक्ट हो या साइन हो, इन सब से जो भी रियल है, जो भी ओरिजिनलिटी है, उससे आपका फाइनल रिप्रेजेंटेशन या फाइनल प्रोडक्ट आपका डिटैच्ड होगा, उससे कोई लिंक आपका नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि सिमुलेशन वीडियो गेम्स के थ्रू, there are a lot of video games which simulate real world activities like sports, racing, like you have that app, what is it called, ड्रीम 11 पे टीम बना करके और जैसे शायद क्रिकेट खेलते हैं, तो वो क्या है, क्यों लोगों को इतना पसंद आता है, क्योंकि वो हमें बिल्कुल रियल फील कराता है, ऐसा लगता है हम रियल में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसलिए ये भी क्या है, एक तरीके का सिमुलेशन है। इसके अलावा VR सिमुलेशन, वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन, ये क्या है, VR सिमुलेशन। These VR simulation are used in fields like medicine, engineering and construction to provide realistic training experience। तो जो भी मेडिकल के क्षेत्र में, आपके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आपकी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में ट्रेनिंग के पर्पस से ये सारे सिमुलेशन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि आप बेटर सीख सकें एक सेफ एनवायरनमेंट में और देन आप उतरें रियल एनवायरनमेंट में। इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर सिमुलेशन भी होते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर सिमुलेशन क्यों होते हैं, लाइक ड्रिल्स फॉर एग्जाम्पल, ड्रिल्स फॉर अर्थक्वेक्स, ड्रिल्स फॉर फायर एंड अदर डिज़ास्टर्स, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी हार्म दैट बिफॉल्स अपॉन यू। इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग सिमुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं। फ्लाइट सिमुलेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि पायलट्स प्रैक्टिस फ्लाइंग इन अ सेफ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो ताकि अगर जब सेफ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो सीख जाते हैं तो फिर वो रियल एनवायरनमेंट में फिर चलाते हैं अपने जो भी प्लेन हैं। तो क्यों ऐसा किया जाता है, ये सिमुलेशन क्यों दिए जाते हैं, ताकि आपको देखिए एक रियल वर्ल्ड जैसा ही आपको एनवायरनमेंट दिया जाएगा, बट वो रियल नहीं होगा। और ये इन्वायरमेंट, इस इन्वायरमेंट में आपको जो सिचुएशन, जो प्रोसेस, जो एक्शंस, जो सिस्टम दिए जाएंगे, उसके थ्रू आपका या तो एंटरटेनमेंट होगा या तो आपकी ट्रेनिंग होगी, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के तहत आपको ये सारे सिमुलेशन दिए जाएंगे। तो सिमुलेशन क्या है, इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रोसेस, सिस्टम और एक्शंस, यही हैं। और ये क्या है, ये स्टैटिक नहीं होते हैं, ये डायनेमिक होते हैं और ये हमें रियल वर्ल्ड सिनेरियो की फील दिलाते हैं, बट ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो से बहुत अलग, बहुत डिटैच्ड होते हैं। क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, बट इस तरह के सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में कोई हादसा नहीं हुआ। तो एक तरीके से ये क्या है, रियलिटी से डिटैच्ड है। सिर्फ ये एक सिमुलेशन हमें दिलाते हैं, ये हमें एक एहसास दिलाते हैं कि ये क्या है, रियल है। And both simulacra and simulation lead to hyper reality। ये दोनों ही किसकी तरफ बढ़ते हैं, हाइपर रियलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि सिमुलैक्रा क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी है, और सिमुलेशन क्या है, किसी प्रोसेस की कॉपी है, किसी प्रोसेस का इमिटेशन है। अब 4 स्टेजेस हैं जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट या प्रोसेस जो है गो थ्रू होता है और वो रियल से क्या बन जाता है, सिमुलैक्रा और सिमुलेशन। ठीक है, क्या 4 इसमें आपके स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज को कहते हैं हम सैक्रामेंटल ऑर्डर। ये नाम जो हैं ये भी आपके जॉन बॉड्रिलार्ड ने ही दिए थे, तो इन्हें हम इसी तरह से देखेंगे और समझेंगे कि क्या इनके मीनिंग है। तो पहली स्टेज क्या है, सैक्रामेंटल ऑर्डर। ये बिल्कुल फर्स्ट, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है जिसमें कोई ओरिजिनल चीज़ जो है उसकी बिल्कुल फर्स्ट कॉपी ली जाती है। ठीक है, कैसे समझ रहे हैं हम, देखिए कि द साइन और द इमेज और द रिप्रेजेंटेशन is seen as a faithful copy or reflection of a profound reality in this stage।
जैसे कि हमने एक सिनिक व्यू देखा और उसकी फ़ोटो ले ली बिल्कुल बेसिक सी अनफिल्टर्ड सी, तो वो क्या है, सैक्रमेंटल ऑर्डर है, बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल है, फेथफुल रिफ्लेक्शन है ऑफ रियलिटी। तो पहले स्टेज में क्या होता है, फेथफुल रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मेलिफिसेंस। ऑर्डर ऑफ मेलिफिसेंस क्या है, इसमें क्या होता है, परवर्जन और मास्किंग ऑफ रियलिटी। परवर्जन और मास्किंग ऑफ रियलिटी। परवर्जन से क्या मतलब है हमारा, या मास्किंग से क्या मतलब है, जब ये आपका सिमुलेक्रा की प्रोसेस अपने सेकंड स्टेज में पड़ती है, जाती है, तो जहाँ अभी तक आपकी बिल्कुल बेसिक अनफिल्टर्ड कॉपी थी, अब उस अनफिल्टर्ड कॉपी में थोड़ा सा फिल्टर आ गया है। अब इस फिल्टर के बाद क्या हो जाएगा, इन दिस स्टेज द साइन इज एन अनफेथफुल और डिस्टॉर्टेड और edited copy of reality. Baudrillard called this distortion of reality the order of maleficence. इसमें क्या है, थोड़ा सा फिल्टर जब आ जाता है, तो जब आपकी अब जो फोटो है, मान लीजिए हम फोटो का एग्जांपल ले रहे हैं, तो अब जो तस्वीर है वो क्या है, ओरिजिनल से डिस्टॉर्टेड है, ओरिजिनल से अब लिंक्ड नहीं है बिल्कुल उतनी जितनी कि आपकी फर्स्ट कॉपी थी, अब इससे दूर हो चुकी है। ये है आपकी सेकंड स्टेज, जिसमें आपकी फर्स्ट हैंड जो कॉपी थी, जो फेथफुल रिफ्लेक्शन था, उसमें अब कुछ ना कुछ फिल्टर आ गया है और अब वो ओरिजिनल से लिंक्ड पूरी तरीके से नहीं है। थर्ड है ऑर्डर ऑफ सोर्सरी। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये समझने में दिक्कत होती है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। इसे हम कहते हैं मास्किंग द एब्सेंस ऑफ रियलिटी। ये क्या है, मास्किंग द एब्सेंस ऑफ रियलिटी। जब हम रियलिटी के एब्सेंस को छुपाने लगें, हम ऐसा प्रिटेंड करें कि रियलिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और ये ना दिखाने चाहें, ये बात छिपाना चाहें कि अब रियलिटी क्या हो गई है, बिल्कुल एब्सेंट हो गई है, तब ये थर्ड स्टेज आती है, ऑर्डर ऑफ सोर्सरी। देखिए, फर्स्ट स्टेज में रियलिटी पूरी तरीके से थी, सेकंड स्टेज में रियलिटी कम हो चुकी है, उसमें फिल्टर आ चुका है, थर्ड स्टेज में रियलिटी बिल्कुल है नहीं, रियलिटी के एलिमेंट बिल्कुल जा चुके हैं, एब्सेंट है, पर हम इस बात को छिपा रहे हैं। कैसे, इन दिस स्टेज द साइन क्लेम्स टू रिप्रेजेंट रियलिटी। जो साइन है, जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आपकी फ़ोटो वगैरह है, या जो भी कुछ आपका अब थर्ड स्टेज में आपका फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, इट क्लेम्स टू रिप्रेजेंट रियलिटी। ये क्लेम तो करता है कि हम रियलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इट इज़ merely अ कॉपी वेयर द ओरिजिनल रेफरेंस डजेंट एग्जिस्ट। ये ऐसी कॉपी है जिसमें ओरिजिनल का कोई रेफरेंस नहीं है। जैसे कि हम बिल्कुल ही फिल्टर्ड कोई फ़ोटो लें किसी अन्य सिनिक व्यू की और कहें कि ये जो है वही वाला सिनिक व्यू है जो पहले हमने फर्स्ट हैंड देखा था। जैसे किसी ने स्विट्ज़रलैंड में जा कर के कोई व्यू देखा और उसकी फ़ोटो अनफिल्टर्ड ली, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो स्विट्ज़रलैंड की उसी जगह जा कर के वही फ़ोटो ले सके, वो किसी ऐसी ही सेम मिलती जुलती जगह पर जाता है जहाँ पे उस फ़ोटो का व्यू काफ़ी मिल रहा है और वहाँ जा कर के एक फ़ोटो लेता है और उसमें इतने फ़िल्टर लगा देता है कि वो अंततः लगभग वैसी ही दिखने लगती है जैसी कि स्विट्ज़रलैंड की वो अनफिल्टर्ड फ़ोटो थी। तो क्या है, इसमें हमने क्या किया, वी आर मास्किंग द एब्सेंस ऑफ रियलिटी। रियलिटी बिल्कुल नहीं है, एब्सेंट है, लेकिन हमने फ़िल्टर के थ्रू, एडिशन के थ्रू इसमें क्या किया, मास्क कर दिया, छिपा दिया उस एब्सेंस को, उस गैर मौजूदगी को हमने छिपाने की कोशिश की और हमने क्लेम किया क्या कि ये बिल्कुल रियल फ़ोटो। जैसे कि एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, लाइक फेक कॉपीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लाइक फेक कॉपीज़ ऑफ सपोज अडीडास शूज़। जैसे अडीडास के जो शूज़ होते हैं,
उसकी मार्केट में बहुत सारी फेक कॉपीज़ आ जाती हैं, उसमें वैसा ही साइन बना रहता है जूते पर और उसी तरीके से, बट वो क्या है, फेक है। इसका क्या मतलब है, देखिए जो ओरिजिनल एडिडास शूज़ हैं वो क्या हैं, उसकी अगर उसके बहुत सारे एडिडास कंपनी ही जब बहुत सारे शूज़ अपने मार्केट में निकाल रही है तो क्या है, वो सेक्रामेंटल ऑर्डर है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड सेम ऑथराइज्ड ओरिजिनल उसके प्रोडक्ट हैं, ठीक है। फिर अगर उसमें थोड़ा सा फिल्टर करके मान लीजिए कि एडिडास कंपनी ही अपना जो बिल्कुल उनका मॉडल था, जो बिल्कुल ओरिजिनल मॉडल था, उसमें अब मान लीजिए कंज्यूमर्स के लिए सस्ता बनाने के लिए उसकी क्वालिटी को, उसके मटेरियल को थोड़ा सा कम करके, उसमें फ़िल्टर करके और एक नए तरीके के शूज़ ही बनाती है, लेकिन एडिडास कंपनी ही बना रही है, तो वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मेलिफिसेंस। उसमें क्या है कि अब रियलिटी से थोड़ा सा हट गए वो शूज़, उसमें बहुत सारे फिल्ट्रेशन आ चुके हैं, बट अभी भी वो रियलिटी से कहीं ना कहीं लिंक हैं। लेकिन जब मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज, बहुत सारे छोटे छोटे सेलर्स या जो छोटे छोटे ये जूते बनाने के अगर फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर एडिडास के नाम से ही, उसके साइन से ही कॉपीज़ बनने लगे, बिल्कुल फेक कॉपीज़ बनने लगे, जिनकी ना क्वालिटी है, ना जिनमें बिल्कुल भी ऑथराइजेशन है जिनके लिए उन्हें, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ सॉर्सरी, वो क्या है, बिल्कुल नकली हैं, फेक हैं, ठीक है। तो फेक कॉपीज़ ऑफ एडिडास और नाइकी शूज़ और कोई भी प्रोडक्ट की जो फेक कॉपी हैं वो आपके ऑर्डर ऑफ सॉर्सरी में आ जाएगा। फोर्थ और लास्ट स्टेज होती है प्योर साइमुलेक्रम की। प्योर साइमुलेक्रम क्या है, this stage is something which has no relation to reality। इसमें क्या है, रियलिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि जो हमने थर्ड स्टेज पढ़ी उसमें भी तो रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसमें रियलिटी से सिर्फ इतना रिलेशन था कि जो भी फेक कॉपीज़ बन रही थी वो दिखा क्या रही थी, क्लेम क्या कर रही थी कि हम रियल हैं, उसमें साइन या लोगो जो भी है वो क्या दिखा रही थी, ओरिजिनल का दिखा रही थी। पर अब जो आपका चौथी स्टेज आता है उसमें आपका रियलिटी से कोई भी लिंक नहीं होता, कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं होती है। जैसे कि इसमें जो आपका प्रोडक्ट होता है, सामने आता है, वो बिल्कुल नया होता है, फेक तो होता है लेकिन ओरिजिनल फेक होता है। इसका क्या मतलब है, बिल्कुल रियल फेक होता है। इसमें जो फेक प्रोडक्ट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल जो भी कुछ था वो अब सेकेंडरी हो जाता है या उसके कोई मायने नहीं रहते, अब फेक को ही रियल माना जाने लगता है। ये जो 4 स्टेजेस बताई हैं बॉड्रिलार्ड ने, वो बताई हैं कि कैसे हमारी पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में, हमारी कल्चर में कोई भी चीज़ कैसे अब परसीव की जाती है, कैसे हम ओरिजिनल चीज़ों को भूल करके अब फेक को ही इम्पोर्टेंट मानने लगे हैं। इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए उन्होंने 4 ये स्टेजेस बताई हैं कि कैसे हम धीरे धीरे ओरिजिनल चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और फेक को ही अब हम रियल मानने लगे हैं। अब इसमें क्या है, प्योर सिमुलेक्रम का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए हैरी पॉटर मूवी, ठीक है, सब हैरी पॉटर मूवी को बहुत पसंद करते हैं। हैरी पॉटर मूवी में जो जगह दिखाई गई है, जो प्लेस दिखाया गया है, जो आपका एनवायरनमेंट दिखाया गया है, जो आपका मैजिक दिखाया गया है, मैजिक के माध्यम से जो भी आपका एनवायरनमेंट दिखाया गया है कि बहुत ही एक एक्साइटिंग एग्जॉटिक एक माहौल है, जो इमेजेस दिखाई गई हैं हैरी पॉटर मूवी में, जो वीडियो दिखाई गई है, जो वर्ल्ड दिखाया गया है in the movie, these are pure simulacrum. These are completely detached from originality. This place doesn't exist in real world, but what we think when we are watching the movie कि यही real world है। कहाँ होगा ये रियल वर्ल्ड, जब छोटे बच्चे उसे देखते हैं कि काश मुझे ये मिल जाए, इस वर्ल्ड में मैं चला जाऊँ, तो कहीं ना कहीं एक सिमुलेशन एक आ जाता है हमारे दिमाग में, एक हमारे दिमाग में ये इच्छा आ जाती है, हम उस चीज़ में खोए रहते हैं कि
कुछ देर के लिए जब हम उस मूवी को देखते हैं हम ये भूल जाते हैं कि वो रियलिटी, हम ये सोचने लगते हैं कि कहाँ से ये हम भूल जाते हैं कि वो रियल नहीं है और रियलिटी कुछ और है, और हम सोचते हैं कि हम यहाँ पहुँच जाएं। तो ये क्या है, ये प्योर साइमुलैक्रम है। देखिए जैसे ओरिजिनलिटी में, जैसे हमारी हैरी पॉटर मूवी में कोई प्लेस दिखाया गया है, वहाँ बहुत दिखाते नहीं, जादुई पेड़ हैं, पेड़ पौधे सुंदर सुंदर और बिल्कुल सीनिक व्यू, और वहाँ ऐसे तारे टूट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही आर्टिफिशियल है। वो उसका जो सोर्स है, उसका जो इंस्पिरेशन है, वो किसी न किसी आपके ओरिजिनल सीनिक व्यू से लिया गया है, ठीक है। और वो थ्रू प्रोसेस इतना ज़्यादा फिल्टर हो चुका है कि वो ऐसा बना दिया गया है, ठीक है। VFX से, बहुत सारे एडिशन से, बहुत सारे हम कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन से वो ऐसा बना दिया गया है, उसमें बहुत सारा कुछ फिल्टर है। तो जो ओरिजिनल था सीनिक व्यू, वो कहीं भी वैसा नहीं लगता, उससे मैच नहीं करता जो फिल्टर्ड आपका हैरी पॉटर मूवी में वीडियोस वगैरह दिखाई गई, जो एनिमेशन, जो स्पेशल इफ़ेक्ट दिखाए गए, स्पेशल इफ़ेक्ट्स के माध्यम से जो व्यू, जो इन्वायरमेंट, जो आपका माहौल, जो वर्ल्ड दिखाया गया है, वो कहीं से भी लिंक नहीं खाता आपके जो ओरिजिनल वर्ल्ड में आप व्यू देखते हैं उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। वो ओरिजिनलिटी से बिल्कुल ही डिटैच्ड है। तो ऐसा वर्ड, लेकिन ये हम जानते तो हैं कि ओरिजिनलिटी से डिटैच्ड है, बट फिर भी हमें क्या लगता है, ये रियल लगता है। ये स्थिति, ये अवस्था, ये स्टेज कहलाती है प्योर सिमुलैक्रम, जहाँ पर हम क्या मानते हैं, हम फेक को ही, हम अनरियल को ही क्या मानने लगते हैं, रियल मानने लगते हैं, रियलिटी मानने लगते हैं, इम्पॉर्टेंस देने लगते हैं, और उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं जाना चाहते हैं। जैसे कि जब हम किसी ऐड को देखते हैं, मान लीजिए किसी सोप का ऐड है या किसी परफ्यूम का ऐड है, तो हम देखते हैं कि जो मॉडल्स हैं, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, एंड दे आर हैविंग अ वेरी tremendous and exotic life, and when they are using that soap or perfume or a particular object, they are having a very good time, their life is completely changed, people are liking him, they are befriending him, and they are getting successful in life. तो what we think, ये सब कुछ देखिए, ये पूरी तरीके से फेक है, ऐसी ना लाइफ है, ना ऐसे लोग हैं, ना इतने अट्रैक्टिव हैं, वो सब कुछ VFX या कैमरा या मेकअप और फिल्ट्रेशन का कमाल है। बट हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि वो रियल है, ऐसी लाइफ हो जाएगी इफ़ वी बाय दैट प्रोडक्ट। तो क्या है, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए मीडिया और ये सारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स और मेकअप और इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हमें रियलिटी से डिटैच कर देती हैं, ये चीज़ें हमें रियलिटी से बिल्कुल अलग कर देती हैं, और जो चीज़ हमें प्राप्त हो रही है उसमें उतने वो सारे गुण नहीं हैं। उसमें गुण क्या होंगे, जैसे मान लीजिए परफ्यूम है तो वो अच्छी खुशबू देगा, बट वो सारे ट्रेट्स, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर बीइंग शोन इन द एडवर्टीजमेंट्स, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन देम। और फिर भी वो सारी चीज़ें क्यों दिखाई जाती हैं, सो दैट दे कैन रीच मोर एंड मोर कंज्यूमर्स। तो इसलिए इन चीज़ों को में क्या होता है, रियलिटी से बिल्कुल भी कोई अटैचमेंट या लिंक नहीं होता है। ये होती हैं 4 स्टेजेस ऑफ सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाइपर रियलिटी। रियलिटी विच इज़ हाइपर, व्हाट डज इट मीन। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अकॉर्डिंग टू बॉड्रिलार्ड बोथ सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन लीड टू हाइपर रियलिटी। सिमुलैक्रा भी जब एक स्टेज के बाद हाइपर रियलिटी में बदल जाती है, सिमुलेशन भी एक स्टेज के बाद टर्न्स इनटू हाइपर रियलिटी। सो व्हाट इज हाइपर रियलिटी? हाइपर रियलिटी is a condition in which the distinction between reality and simulation has collapsed, and where simulation or simulacra do not just represent reality but effectively replace it or become more real. This is a situation, this is a condition where the simulation or representation is considered more real than the reality, where the line between real and simulated is blurred. For example, modern era simulations जैसे TV, films, ads, social media replace the original realities
दे आर सपोज टू रिप्रेजेंट। वही जैसे मैंने अभी बताया था, ये सारी चीज़ें जो रियलिटी हैं जिसे इन्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसको रिप्लेस करके बिल्कुल एक नई रियलिटी हमारे सामने खड़ी कर देती हैं, बिल्कुल नई चीज़ खड़ी कर देती हैं, और वो रियल नहीं है, बट हमें क्या लगता है दैट दिस इज़ रियल एंड वी कैन अचीव इट बाय बाइंग दिस प्रोडक्ट, बाय परचेजिंग दिस प्रोडक्ट। सो बॉड्रिलार्ड यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ डिज्नीलैंड। उन्होंने डिज्नीलैंड का एग्जाम्पल यूज़ किया था, और ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बॉड्रिलार्ड ने हाइपर रियलिटी को समझाने के लिए क्या एग्जाम्पल यूज़ किया था। तो वो था डिज्नीलैंड का एग्जाम्पल। एंड थ्रू दिस एग्जाम्पल ऑफ डिज्नीलैंड ही एक्सप्लेन्स हाइपर रियलिटी। जैसे कि आप इसे इस तरीके से समझिए कि डिज्नीलैंड गोज बियॉन्ड सिंपली इमिटेटिंग रियलिटी, you know, it constructs a new reality that is often more compelling and believable than the actual world. डिज्नीलैंड हमें क्या लगता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा कंपेलिंग लगता है, ज़्यादा हमें बिलीवेबल लगता है। हमें क्या मतलब, छोटे बच्चों को जिन्हें ये नहीं पता कि रियलिटी और फेक में क्या डिफरेंस है, कई बार तो बड़ों को भी, जैसे उसमें ऐसे घर दिखाए गए रहते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट दिखाया गया रहता है, ऐसे लोग दिखाए गए रहते हैं कि हमें बहुत हद तक ये लगता है कि हाँ ये रियल वर्ल्ड ही है। ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल ही सब कुछ फेक बना दिया जाता है कि हमको समझ में आ जाए कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है। उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि ओरिजिनल से मैच खाते हैं। जैसे उसमें घर भी होते हैं, उसमें पेड़ पौधे भी होते हैं, उसमें सिनिक व्यू भी होता है, उसमें पार्क के भी एलिमेंट्स होते हैं, नेचर के एलिमेंट्स होते हैं, उसमें मॉडर्न सोसाइटी के भी एलिमेंट्स होते हैं, झूले वगैरह भी हैं, सब कुछ है। तो हमें रियलिटी जैसा फील कराते हैं, बट द रियलिटी विच इज़ मोर अपीलिंग दैन द रियल वर्ल्ड। तो अगर दो वर्ल्ड हैं और दोनों ही हमें रियल लग रहे हैं, ठीक है, एक रियल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, और एक ऐसा वर्ल्ड है जो डिज्नीलैंड का, वो भी हमें रियल लग रहा है, तो लेकिन हमें इस रियल वर्ल्ड से ज़्यादा ये नया रियल वर्ल्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ अट्रैक्टिव है करने को, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है करने को, इसमें हमारा एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, मिकी माउस, मिनी माउस, जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं है, लेकिन रियल चीज़ों के साथ मिक्स करके हमें दिखाए गए हैं, तो हमें लग रहा है कि ये भी एक रियल वर्ल्ड है। तो दोनों रियल वर्ल्ड में से अब ज़्यादा रियल कंज्यूमर किसको मानेगा, इस नए वर्ल्ड को मानेगा, जो कि ज़्यादा उसके लिए इंटरेस्टिंग है, अपीलिंग है, एंटरटेनिंग है। ठीक है, यही चीज़ है कि एक नई रियलिटी को खड़ा करना जो ओरिजिनल के सामने इतना ज़्यादा अपीलिंग रहे, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे कि इंसान ओरिजिनल को भूल करके उस फेक रियलिटी को ही न्यू रियलिटी मानने लगे, उसी को प्रायोरिटी देने लगे। ठीक है, सो डिज्नीलैंड इज़ अ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड, it is carefully curated simulation. It is a simulation, it is a representation, it's not a reality, it's a carefully simulated representation of an ideal world. एक आइडियल वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन देता है, एक यूटोपियन वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन देता है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन देता है. इट हैज़ नो रिलेशन विद द रियल वर्ल्ड, बट द कंज्यूमर्स, द टूरिस्ट्स find it more appealing or dominantly real than the real world. ये dominant कर जाता है हमारे real world पे, क्योंकि ये हमें ज़्यादा appealing लगता है. तो यही होता है हमारा concept of hyper reality. अब एक लास्ट बात है, बॉडलार्ड ने गल्फ वॉर के बारे में जो कही थी, एक छोटा सा टॉपिक है, हम इसे यहीं पर समझ लेते हैं कि उनके व्यू क्या थे गल्फ वॉर के बारे में. जो इराक की वॉर थी, वो मानते थे कि गल्फ वॉर हुई नहीं थी एक्चुअली. जैसे एक वॉर लड़ी जाती है दो देशों के बीच में, तो यूएस और इराक के बीच कोई ऐसी वॉर लड़ी नहीं गई थी इतने बड़े लेवल पर कि उसे वॉर का नाम दिया जाए. छोटी मोटी एक कह सकते हैं कि लड़ाई थी, बट उसको एक वॉर का नाम दे दिया गया थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू PR एंड थ्रू वेरियस फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी, जो कि जिनका कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट था कि उसे वॉर का नाम देने का. तो उन्होंने ये कहा कि द गल्फ वॉर डिड नॉट रियली टेक प्लेस. ही सजेस्टेड दैट इट वॉज केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड मीडिया इवेंट और अ सिमुलेशन
rather than a genuine conflict. एक genuine conflict ना होकर के एक सिर्फ मीडिया इवेंट था, एक सिमुलेशन था, लोगों के लिए एक सिमुलेशन था, उनको वॉर की फील आ रही थी। तो उस टाइम पर वो अपनी चीज़ें, बाकी परेशानियों को भूल करके, कि नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, इन सब चीज़ों को भूल करके जब वॉर में होते हैं ना, तो एक देश प्रेम की भावना इतनी ज़्यादा रहती है कि हम बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, बाकी चीज़ों को साइड कर देते हैं। तो उस टाइम पर शायद इसलिए वो कहते हैं कि इसको केयरफुली क्यूरेट किया गया था, जस्ट टू गिव द सिमुलेशन टू द सिटीजन्स, और मे बी वी कैन से कंज्यूमर्स, रादर देन बीइंग इट अ जेन्युइन कॉन्फ्लिक्ट, ताकि लोगों को एक वॉर की सिमुलेशन दे, ताकि उस माहौल में बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। और इसलिए वो कहते हैं कि गल्फ वॉर इज़ नॉट एक्चुअली अ वॉर that was being fought, and it was just a conflict which was given the portray of a war um, through various simulations. तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।